Subhanallah walhamdulillah. How are you? I hope that you are fine. Today we are going to start the third lecture of our physics lecture. That is the what we have started already. That is motion. Today we have a third part of it. So let us start. We have a new topic there. That is acceleration. I hope that you have already regarding what I have studied, what I have learned already. That is the motion, velocity, distance, displacement. If you have any doubt regarding that, you can put in the comments. So today we are going to we are going to start the new lecture that is about acceleration. So let us start. Acceleration. Acceleration is denoted as small a, and it is defined as, the definition is going, it is same what is we have studied already in velocity. It is change in velocity. It is the ratio of change in velocity with time. It is the first definition. You can also equate this in the way as, it is dv by dt. Dv by dt, that is, it is the rate of change of velocity. How velocity is changing, velocity change, that is dv, how it is changed with time, dt. It can be also written as final velocity. Let me state this in another way as final velocity minus initial velocity divided by final time minus initial time. So it is final velocity minus initial velocity divided by final time minus initial time. So it is the definition of acceleration. So for the acceleration there should be change in velocity. So let us write some points. First of all, we will go to about some points, that is, if change in velocity is 0, that is velocity is equivalent to constant. We have acceleration is equivalent to 0. If change in velocity is equal to 0, we have velocity is equal to constant, then we have acceleration is equal to 0. Similarly, we have, so it was the first point. Second point you can note is here is, आप जो दूसरा पॉइंट नोट कर सकते हो वो क्या है, वो आप नोट कर सकते हो कि ये जो एक्सेलरेशन है, तो लेट अस डिस्कस विद सम अदर पॉइंट्स विद यूजिंग द ग्राफ. So let us choose a new pen here. So let it be that it is our velocity. That is v, and it's our time. We have this graph in this way. So here you can see that, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो वेलोसिटी है इसका कुछ वैल्यू, वेलोसिटी का कुछ वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट हियर. यहाँ से फिर क्या है कि वेलोसिटी जो है, इस यहाँ से वेलोसिटी सेकंड केस में, इसको मैं सेकंड लिखूंगा, इसको मैं फर्स्ट लिखूंगा. तो फर्स्ट केस में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. सेकंड केस में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है. वो क्या है, इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे. तो मतलब ये है कि सेकंड केस में बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करेगी. इसका मतलब ये है कि बॉडी एक्सेलरेशन है, बॉडी की एक्सेलरेशन है. लेकिन इस पहले हिस्से में एक्सेलरेशन 0 के बराबर है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ वैल्यू है. आई समझ आपको, कुछ वैल्यू है. तो ये ग्राफ से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ. उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आप लिख सकते हो, so it is defined as in change in velocity and time, that is dv by dt. So thirdly you can write as we have written as a is equivalent to dv by dt, it is equivalent to dv by dx, that is equivalent to dv by dx. It is equivalent to slope of velocity time graph. Slope of velocity time graph.
So if we have velocity time graph here, suppose we have this is our velocity. Suppose this is my velocity here. This is my velocity and this time. It has some value like this. This theta is given by du by dx. This is equivalent to acceleration. This slope is equivalent to acceleration is equivalent to tan theta here is equivalent to v2 minus v1 divided by t2 minus t1. इसके बाद जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, वेलोसिटी में पढ़ा था, वैसे अब यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं. सेम वही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट के बदले वेलोसिटी ली है और टाइम यहाँ पे सेम ही है. उसके बाद क्या है हमारे पास, जो अभी हम चौथा पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि एक्सेलरेशन हमने बोला कि इट्स रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट dv दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम एक्सेलरेशन इनटू टाइम लिख सकते हैं dt. और सिंपल, अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम भी कांस्टेंट है, इफ v एंड a इज कांस्टेंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू at, दैट इज वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम. v is the product of acceleration and time. Similarly we can write here, इसका मतलब ये भी है which implies that we can write the another definition of what we say is velocity acceleration as it is the area under, we have velocity is equivalent to area under एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेलरेशन, ये टाइम है, अगर ये कोई एरिया सपोज करते हो, ये कोई एरिया लेती है यहाँ से, जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का जो एरिया है, ये एरिया क्या देगा हमें, ये एरिया देगा हमें वेलोसिटी. क्या देगा? वेलोसिटी. तो ये एरिया देगा हमें वेलोसिटी. अगर हमने पहले वाले लेक्चर में कुछ गलत किया हो तो आप उसको करेक्ट कर लेगा. एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी हियर. तो सिमिलरली नाउ वी कैन राइट द अनदर थिंग हियर इज we can have here यूनिट्स एंड डायमेंशंस. जैसे हमने हर किसी लेक्चर में पढ़ा था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वैसे हम यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे. तो हमारे एक्सेलरेशन किसके बराबर है, सिंपली मैं अब लिखूंगा, अब मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, अब मैं सिंपली लिखूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम. तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है. यहाँ पे टाइम को भी इनटू सेकंड हो जाएगा मल्टीपल, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड इंटू सेकंड इज सेकंड स्क्वायर. इसको हमको मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट एंड इट कैन बी आल्सो राइट एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. लास्ट में हम कंपैरिजन भी करेंगे और कंपैरिजन में सारी चीज़ें आप कैसे रखोगे इन सब चीज़ों को याद, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. उसके बाद अगर हम इसकी एक्सेलरेशन की डायमेंशंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डायमेंशंस की बात करेंगे, तो सिंपली ए इज इक्वल टू वी बाई टी. वेलोसिटी का क्या बोला था हमने, वेलोसिटी का बोला था हमने इट इज़ उसका जो क्या था डायमेंशन, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इसकी यूनिट से भी कर सकते हैं. इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड. इसका क्या है, सेकंड. तो मीटर का है लेंथ, दैट इज लेंथ. सेकंड इज टाइम, दैट इज टी. एंड सेकंड अनदर सेकंड इज हियर टी. इसका क्या है, दैट इज एल बाई टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस टू. अगर हम इस टी को ऊपर करेंगे तो ये टी माइनस टू में पावर में आएगा, दैट इज एल टी माइनस टू. तो इसका डायमेंशन क्या हुआ, डायमेंशन इज इक्वल टू एम जीरो एल वन टी माइनस टू, दैट इज इक्वल टू एल टी माइनस टू. क्या है इसका डायमेंशन फिर, एल टी माइनस टू. तो इसको आप देखिएगा, इसको आप अंडरलाइन करिएगा यहाँ पे यूनिट्स और डायमेंशन को. उसके बाद हमारे पास क्या है, तो ये उसका डायमेंशन हुआ. अब हम कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स और डेवलप होंगे और आपको जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. देखिए मैं यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन कराऊंगा अभी, यहाँ आप देखिएगा. तो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर. सपोज हमारे पास एक बॉडी है, सपोज एक बॉडी क्या है, बॉडी मूव्स. एक बॉडी है मेरे पास, बॉडी मूव्स
in circular motion as given below. Calculate the value of distance and displacement if, अगर हमारा जो रेडियस है, इफ रेडियस इज इक्वल टू पाई मीटर, रेडियस कितना दिया गया है, पाई मीटर, तो क्या हमें बोला गया है, हमें बोला गया एक बॉडी है, वो एक सर्क्यूलर मोशन में क्या कर रही है, सर्क्यूलर मोशन में मूव कर रही है, ऐसे एक सर्क्यूलर मोशन में वो मूव कर रही है, और इसका जो रेडियस है वो कितना दिया गया है, द रेडियस इज गिवन एज पाई मीटर, कितना दिया गया है, तो इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना दिया गया है, पाई मीटर के बराबर, तो इट इज गिवन एज पाई मीटर, ये जिसका रेडियस है पाई मीटर। तो हमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट वी हैव गिवन इज रेडियस दैट इज इक्वल टू पाई मीटर and we have given the body is in circular motion. We have to find हमें क्या बोला गया है, हमें बोला डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस। तो बॉडी का नहीं दिया गया है कि बॉडी मोशन सर्कुलर मोशन एज गिवन बिलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ आर इज इक्वल टू पाई मीटर। हमें ये नहीं दिया गया है कि बॉडी अभी फुल सर्कल में मूव कर रही हैं, या ये कंप्लीट सर्कल कर रही हैं, या हाफ सर्कल कर रही है, तो हम इसको एज कंप्लीट सर्कल के लिए सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि नहीं दिया गया है, तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ गिवन एज फुल सर्कल। तो सपोज हम लेके इस सेंटर को हम यहाँ पे नाम रखेंगे ओ, इस पॉइंट को नाम रखेंगे ए, इस पॉइंट को नाम रखेंगे बी। तो यहाँ पे बॉडी ने स्टार्ट किया, सपोज यहाँ पे बॉडी ने स्टार्ट किया मूव करना, या कोई इंसेक्ट था वो चल रहा था यहाँ से, फिर वो यहाँ पहुँचा बी पे, फिर बी से निकल के वो वापस अपनी पोजीशन पे पहुँच गया, यानी कि उसकी जो फाइनल है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी यही हुआ, फाइनल पॉइंट भी यही हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही हुआ और फाइनल पॉइंट भी यही हुआ। अब हमें बोला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम कैसे करेंगे, तो distance is given as, we know that distance is equal to total path length covered by an object, तो इसने कितनी सारी टोटल पाथ कितनी इसने की, टोटल पाथ हियर इज इक्वल दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्यों सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि इसने यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट की, इस पॉइंट से शुरू किया और इस पॉइंट को वापस इसी पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये जो सारी पाथ होती हैं, जैसे हम करते हैं प्लेन एरियाज में हम करते हैं उनका पेरीमीटर, ये जो पेरीमीटर इसके बराबर है वो इसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर है, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर रेडियस, वेयर आर इज द रेडियस। तो 2 तो हमारे पास 2 ही हैं और पाई हमारे पास खुद का पाई वैल्यू है, और आर दिया गया है, आर वाज गिवन एज पाई मीटर, तो आर हमारे पास पाई है, तो इसका वैल्यू क्या हुआ 2 पाई स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, या आप एनसर्कल करिएगा तो 2 पाई स्क्वायर। अगर हमें या तो वैल्यू दी होगी, जैसे कि अगर हमारे पास पाई दी है, बी दिया है 2 पाई स्क्वायर, सी दिया है पाई स्क्वायर बाई 2 एंड डी दिया है 2 पाई, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, दैट इज 2 पाई स्क्वायर। यह ऐसे नहीं वैल्यू दिया है, सपोज यहाँ पे दूसरे सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, बोला गया होगा 3.14, दूसरा वैल्यू दिया होगा 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर, सी वैल्यू दिया होगा 3.14 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड डी इज गिवन बाई 2 इंटू 3.14। तो तब भी क्या आएगा, तब भी बी ही वैल्यू आएगा, क्योंकि हमारे पास जो पाई का वैल्यू होता है वो 3.1414 बार होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी हियर। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। एक आसान सी प्रॉब्लम है,
कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। यहाँ पे वहाँ पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करनी थी, यहाँ पे भी वही करनी है। तो सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है इसने, सेकंड पार्ट में पूछा था इसने डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में कितना होगा, सपोज हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, वैल्यू दी गई है पाई, बी वैल्यू दिया गया है 2π², सी वैल्यू दिया गया है हमारे पास 0, एंड डी वैल्यू जो दी गई है दैट इज इक्वल टू, सपोज डी वैल्यू दी गई है, डी वैल्यू इज गिवन एज 2π। अब आप मुझे बोलिए क्या आएगा आंसर। अब ए आएगा, पाई आएगा, 2π² आएगा, 0 आएगा, 2π आएगा, क्या आएगा बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट वी नो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट कितनी बराबर होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे अब जो आप देखिएगा अब मज़ेदार बात यह है कि जब हम सर्कल बनाए, बॉडी ने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था इसने। बॉडी की फाइनल पोजीशन कहाँ पे, यहीं पे है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, ये सेम ही है। तो इनके दरमियान क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हियर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हियर इज व्हाट, दैट इज 0, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एक ही जगह पे दोनों पॉइंट मर्ज हुए हैं। तो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट आएगी 0 के बराबर। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी इजी सोल्यूशन। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, देखो दूसरा सोल्यूशन इसी पार्ट का, दूसरे पार्ट का आप दूसरे तरीके से, अगर मोर डिफाइनड वे में, मोर ऑफ एक फिजिकल वे में, मोर ऑफ एक प्रोफेशनल वे में इसको आंसर देना चाहोगे तो कैसे देना चाहोगे। देखो हमारे पास क्या है कि वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स दैट इम्प्लाइज दैट इट डिपेंड्स अपॉन साइन, ये साइन पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आप मज़ेदार बात आएगी, देखो हमारे पास सपोज करो ये हमारा सर्कल था, ये हमारी मोशन थी यहाँ पे, इसको मैं प्रॉपर वे में बनाऊंगा, यहाँ से देखिएगा, सपोज ये हमारी मोशन थी, और ये जो मोशन थी हमारे पास, सपोज करो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहाँ पर, ये इसको चीरती हुए यहाँ पर निकलेगी, सपोज ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश एंड वाई डैश कोऑर्डिनेट है मेरे पास। तो बॉडी ने कहाँ स्टार्ट किया है, बॉडी ने यहाँ स्टार्ट किया है, आपको पता है ये नंबर लाइन पे, ये जो ऑरिजिन होता है, ये ऑरिजिन हमारा सेंटर है यहाँ पर, ये जो नंबर लाइन यहाँ पे आपको पता है यहाँ से नेगेटिव वैल्यू होती है और यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू होती है क्या। तो यहाँ पे करते हैं, आपको खुद समझ में आएगा। देखो इंसेक्ट ने सफ़र किया यहाँ पे शुरू, तो यहाँ पे कुछ चलते चलते कुछ वैल्यू बना, और चलते चलते कुछ और वैल्यू बना, लेकिन ये जो वैल्यू बना है ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये अगर इस डायरेक्शन में है, ये उसके नीचे वाली डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन, ये नीचे वाली डायरेक्शन। इसका मतलब यही, ये ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव है, मतलब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अपने आप को नलिफाई करते हैं, क्या करते हैं, अपने आप को ये इफेक्ट्स नलिफाई करते हैं। अगर यहाँ से ये फिर क्या है, फिर क्या यहाँ पे क्या है, अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये फिर से इंक्रीजिंग है, आई समझ आपको। तो मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव नलिफाइज ईच अदर, एंड हियर द वैल्यू बिकम्स, द फाइनल वैल्यू बिकम्स ज़ीरो। सपोज करो यहाँ पे कुछ वैल्यू आती थी, यहाँ से निकल के कुछ वैल्यू आती थी +2 पहले क्वाड्रेंट में, सेकंड में वो -2 आएगी, तो दैट इज़ 0। थर्ड में सपोज अगर +2 आती है तो फोर्थ में फिर -2 आएगी, दैट इज़ फाइनली वैल्यू क्या आएगा, फाइनल वैल्यू आएगा फिर से 0, क्योंकि एक वेक्टर है, ये डिपेंड्स अपॉन साइन, ये साइन पे डिपेंड करता है। ये आप देखिएगा, इसको मैं आपको ये कंसेप्चुअली बता रहा हूँ, वरना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट हियर नलिफाइज बिकॉज द वेक्टर इट डिपेंड्स अपॉन साइज, सो द फाइनल वैल्यू कम्स आउट टू बी ज़ीरो। आप डिफरेंट तरीके भी कर सकते हैं इसको। तो कंसेप्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे भी आप कोई भी वैल्यू लो, फर्स्ट या थर्ड क्वार्टर लो, सेकंड या फोर्थ क्वार्टर लो, पहला सेकंड क्वार्टर लो, हर किसी तरीके से ये नलिफाई होगा, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा दैट विल कम आउट टू बी ज़ीरो। होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सो नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम हियर। अब हम दूसरी प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो दूसरी प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन दिया है, गिवन हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू मिलेगा हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। क्या करना है हमें, एक्सेलरेशन। तो सपोज ये हमारा ग्राफ है, ये वेलोसिटी दी गई है और ये टाइम दिया गया है, और सपोज जो वैल्यू है वो ऐसे है, सपोज वो वैल्यू ऐसे है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है टाइम की 0, 5, 10, यहाँ पे वैल्यू दी गई है 5। तो इसका जो वैल्यू होगा 5, वो आपको पता ही वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जो टाइम को होगा दैट इज सेकंड्स। आपको बोला गया है फाइंड दी वैल्यू ऑफ व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू करनी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, एंड वी नो द नाउ सॉल्यूशन इज कम्स एट, सॉल्यूशन इज गिवन एज, वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी दैट इज dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू dy by dx दैट इज इक्वल टू स्लोप का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू स्लोप, यानी कि थीटा का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू जो आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारी एक्सेलरेशन होगी, अब पहले में जाइएगा, देखो पहले में जाएगा तो आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे जो पहले में यहाँ पे स्लोप 0 है, सिंपली स्लोप इज 0। तो इसका मतलब यह है, अगर आपको पता है स्लोप क्या होता है, आपको डेफिनेशन पता है, आपको सब कुछ पता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सीधे वैल्यू देख सकते हो, क्योंकि एक लीनियर चीज़ का एक प्लेन, अगर वो प्लेन पे है, कोई थीटा नहीं बना रही, तो उसका क्या है स्लोप उसका ऑलरेडी 0 है, तो पहले पार्ट का क्या आएगा, पहले पार्ट का यही आएगा कि एक्सेलरेशन जो पहले इस वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी दिया गया है, फ्रॉम 5 to 10 सेकंड्स वी हैव 5 to 10 सेकंड्स, ये किसके लिए है 0 to 5 सेकंड्स। अब 5 to 10 सेकंड्स में क्या हो रहा है, बॉडी की जो वेलोसिटी वो ऐसे चेंज हो रही है, देखो ऐसे चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, ये 5 वैल्यू है, ये 5 है, ये 10 सेकंड्स है, तो कैसे हमें बोलना है, तो हमें पता ही है कि एक्सेलरेशन क्या है, डी बाई डी टी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्लोप है नेगेटिव है, दैट इज ऑब्ट्यूज है, दैट इज मोर देन, ये स्लोप कैसे होता था, ऐसे होता था, लेकिन यहाँ पे बढ़ता गया, यहाँ से चला गया, दैट इज इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, ये ऑब्ट्यूज हो गया, मोर देन 90 हो गया स्लोप यहाँ पे, ये आप कॉन्सेप्चुअली देख लगेगा, ये हमारा थीटा है यहाँ पे, एक्चुअली इट इज़ 180 माइनस थीटा एक्चुअली हियर। ये जो स्लोप है यहाँ पे क्या है, स्लोप नेगेटिव है, तो फाइनल वेलोसिटी करेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 क्या है, v2 हियर इज, यू कैन सी यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 5 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो 0 माइनस 5, टाइम कितना है, फाइनल टाइम हमारे पास 10 सेकंड है और इनिशियल टाइम है 5 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड से हम इस वाले के लिए कर रहे हैं, इस वाले कन्फ्यूज नहीं होना है, इस वाले के लिए कर रहे हैं हम, सिंपली यहाँ से कर रहे हैं कैलकुलेट हम, तो क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज -5 अपॉन 10 माइनस 5 इज 5, दैट इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता ही है इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -1 आया हमारे पास वैल्यू, -1 आया हमारे पास क्या, स्लोप की वैल्यू, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1। अच्छा माइनस क्यों आया, हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास पता भी नहीं होता कि माइनस वैल्यू आएगी, हम इसको ग्राफ से भी देख सकते थे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर ये ऐसे होता तो ये पॉजिटिव स्लोप की निशानदेही है, ये पॉजिटिव, ये यहाँ पर 90 हो गया, फिर 90 से जो ही यहाँ पे चला गया दैट इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर दैन tan थीटा ग्रेटर दैन 90, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप। आप स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ भी आपका वैल्यू -1 ही आएगा। होप यू हैव अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम, इज आल्सो द इजी प्रॉब्लम। लेट अस डिस्कस द थर्ड प्रॉब्लम एंड इट विल बी मोर इजी नाउ। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 हियर। सपोज हमारे पास क्या दिया गया है, सपोज वी हैव गिवन एज, सपोज वी हैव गिवन, वी नो दैट, हम क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे, वी नो दैट वैस, सो सपोज करो हमारे पास, हमें पता ही है कि वेलोसिटी क्या है, बराबर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सपोज
हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन फ्रेम, सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फ्रेम सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अ बॉडी, एक बॉडी है जो मूव करती है, मूव्स विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इन टाइम टेकन एज 20 मीटर पर सेकंड, बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी, नहीं इन टाइम नहीं, बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड टाइम टेकन इज गिवन एज इफ होल जर्नी आकर्स इन टाइम टेकन इज, यहाँ होल जर्नी कुछ भी लिख सकते हैं, कितने टाइम में होल जर्नी हो रही, दैट इज इन, हम लिखेंगे यहाँ पे 30 मिनट्स, क्या लिखिए 30 मिनट्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पहली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंपली सोल्यूशन लिखेंगे, लेट अस राइट द सोल्यूशन हियर। वी हैव अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी कितनी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम दिया गया है 30 मिनट्स। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 मिनट टाइम दिया गया है, लेकिन वेलोसिटी जो दी है वो मीटर पर सेकंड में दी गई है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स, आपको हर किसी क्वेश्चन में ये याद रखना है, यू हैव टू टेक द यूनिट्स इन सेम। आपको अगर टाइम लिया है मीटर में पर सेकंड में, तो आपको सारा टाइम, सारे यूनिट कन्वर्ट करने हैं सेकंड में। अगर आपने मिनट में लिया है तो मिनट में ही कन्वर्ट करने हैं, अगर आपने आवर में लिया है तो आवर में ही लेने हैं। या आपको क्वेश्चन में पूछा गया है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में ही सारे कन्वर्ट करने हैं। अगर बोला गया है मिनट पर आवर या किलोमीटर पर आवर, तो उसके हिसाब से आपको यूनिट कन्वर्ट करने हैं। यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स इनटू दैट इन विच यू हैव टू फाइंड, और इन विच यू हैव given to find in this very particular aspect. So हमारे पास क्या है कि we know that velocity is equivalent to displacement by time, that is which imply that displacement is the product of velocity into time, हमने पहले ही पढ़ा है। तो हमारे पास क्या है, velocity कितना दिया है, velocity is given as 20 मीटर पर सेकंड and time is given in 30 मिनट। 30 मिनट is how much, 30 मिनट्स, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो इसको 60 से मल्टीपल करना है, क्योंकि एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो इट इज़ 20 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, 30 इंटू 60 हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, और ये सेकंड और सेकंड नलीफाई हुआ। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी, मीटर में आएगी। कितना आएगा, 3 2 6 3 2 6 एंड 6 6 36, 3600 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल इसका आया, दैट इज इक्वल टू 3600 मीटर। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे ली है, और आपको समझाने की कोशिश की है कि आप इनको कैसे कर सकते हो। अब हम शॉर्ट में यहाँ पे एक रिव्यू लेंगे, आप याद रखना सारा मैंने क्या बोला। हमने पहले लेक्चर में क्या किया, मोशन पढ़ी हमने बोला एक बॉडी तब मोशन में होती है जब अपने पोजीशन को चेंज करती है एक जगह पे दूसरी जगह पे तक, और उसको के लिए कुछ टाइम लगता है वहाँ से पहुँचने में। तो हम बोलते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इसका मोशन है अभी। उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्या होती है। उसके बाद हमने बोला कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होती हैं और इनमें क्या फ़र्क होती है और कब ये दोनों बराबर हो सकते हैं। हमने बोला अगर स्ट्रेट लाइन में हमारा सफ़र हो रहा है तब दोनों जाके ये बराबर होती हैं। और फिर हमने यूनिट की बात की, इनके डायमेंशंस की बात की। हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस होती हैं, सेम होती हैं। उससे क्या होती है, सेम। उसके बाद हमने बोला कि अब यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें वेलोसिटी लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लेता हूँ मैं एक्सेलरेशन। आप इस ग्राफ को याद रखिएगा, लास्ट ग्राफ नहीं, ये मैं कॉलम ले रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैं सिंपलेस्ट वे में आपको डिस्कस करूँगा अभी यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर हैं, ये भी वेक्टर हैं। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मीटर। SI यूनिट इसका मीटर है, इसका है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके डायमेंशन क्या है, इसके डायमेंशन है L, इसका डायमेंशन है LT-1, इसका डायमेंशन है LT-2। उसके बाद में हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने बोला डिस्प्लेसमेंट होता है हमने बोला यहाँ पे वेलोसिटी होती है
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यहाँ पे हमने बोला एक्सेलरेशन होती हैं dv/dt। अब सिंपलेस्ट में यहाँ पे dv लिख रहा हूँ, तो उसको आप ऑलरेडी हमने कंसेप्ट किए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक डिफिनेशन होगी। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट रेशो ऑफ d/t। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dy/dt। उसके बाद यहाँ पे मैं और लिख सकता हूँ व्हाट आई कैन से इज दैट dvb इज इक्वल टू adt। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। उसके बाद एक और पॉइंट आप ऐड करो इसमें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये ओवरव्यू है सारे कॉन्सेप्ट का, सारे लेक्चर का, इन सारे तीनों लेक्चर का। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हमने बोला कि अगर होगी तो इसको आप याद रखिए। फिलहाल इसको आगे हम फर्दर फिर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। इट इज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस 3 लेक्चर्स। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको लेक्चर सही लगा हो, आपको कुछ सीखा हो, आप बहुत अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा हो कुछ सीखा हो, यहाँ से कुछ भी लगा हो सीखा हो, तो हम आपको इससे यही मांगते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स गाइस।